remaining remaining part of the problem that we have discussed last time. Okay, last time we have discussed this problem, that what is the how to calculate the reduced level of a station from the point. Okay, so now this problem, and here is the solution of the problem. We have to solve this problem by using two methods. One is height of collimation method and another is the rise and fall method. Okay, दो चीजों दो मेथड से हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कॉलिमेशन सिस्टम और हाइट ऑफ कॉलिमेशन और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी इसे बोलते हैं, और दूसरी जो मेथड है उसको हम राइज एंड फॉल मेथड बोलते हैं. ठीक है, राइज एंड फॉल मेथड में से भी हम इसे सॉल्व करेंगे. तो इसमें क्या होता है, देखो अभी हाइट ऑफ कॉलिमेशन में वी हैव टू अगेन गोइंग थ्रू दिस problem, that is following readings were taken successively. First of all, am I audible to all? First, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Now, so following staff readings were taken successfully with the levels of the leveling staff. These are the readings we are given, and the instrument was shifted after third and sixth reading. Okay, so record these recording readings in a table and find out the reduced level of the different points. Assume RL of a first point is 100 meter and apply usual check. Here, this book is what? This book is this reading notation that we have to write in a table. That is nothing but the reading book for the leveling. Okay, that is nothing but the reading book for the leveling. If and according to the problem, what we do and how we solve this problem, we have given here this station. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stations. There are 8 stations, or the readings were taken in a 8th station, and the instrument is shifted or was shifted after third reading and sixth reading. Okay, means what is your third reading? That is third reading is 1.565, and what is the sixth reading? That is 0.6th reading is the 56 3.560 is the third reading. Is the third reading. Now here we have to prepare the table. We have to prepare a table. So remember that when we doing a survey, always remember that the first reading is the backside reading. First reading is what? Backside reading. So that's why we have to write here. That's why we have to write this reading in a reading here. That is the backside reading. Okay, this is your what? Backside reading. पहला reading, first reading क्या होता है? बैकसाइड रीडिंग होता है. जब भी हम कोई भी सर्वे स्टार्ट करते हैं, वो बेंचमार्क हो या कोई भी पॉइंट हो. ओके, अगर आप बेंचमार्क नहीं ले रहे हो, अगर आपको सिर्फ सिंपल सर्वे करना है, तो आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? पहला रीडिंग जो होगा आपको आपका क्या होगा? बैक साइड रीडिंग होगा. उसके बाद जो सेकंड रीडिंग होगा वो होगा तुम्हारा इंटरमीडिएट साइड रीडिंग. वो क्या होता है? इंटरमीडिएट साइड. तो हम लोग क्या करेंगे? उसको इंटरमीडिएट साइड में पुट कर देंगे, वैल्यूज में पुट करेंगे. अभी उन्होंने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, द इंस्ट्रूमेंट और द लेवल वाज शिफ्टेड आफ्टर थर्ड रीडिंग. हियर इट इज अवर थर्ड रीडिंग. हमारा थर्ड रीडिंग क्या है? ये वाला. ठीक है, थर्ड रीडिंग क्या है? ये वाला, दैट इज 0.330. इस ये रीडिंग लेने के बाद हमें क्या करना है? इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करना है. तो ये रीडिंग मतलब ये रीडिंग, ये जो चेंज पॉइंट का पहले चेंज पॉइंट का रीडिंग क्या हुआ? तुम्हारा लास्ट रीडिंग होगा. लास्ट रीडिंग हम कहाँ पे लिखते हैं? वी हैव टू राइट दैट लास्ट रीडिंग इन द फोर साइड कॉलम. ओके, फोर साइड के कॉलम में हमने लास्ट रीडिंग रख दिया. उसके बाद अभी इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हो गया. ओके, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, only the position of the instrument on and the position of the station is remain same. okay, पहले सपोज यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे था. ओके, ये पहला रीडिंग, ये दूसरा रीडिंग. उसके बाद हमने क्या किया? इंस्ट्रूमेंट यहाँ से शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट आ गया. ये इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ पे किया और यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया. उसके ये स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 2, ये स्टेशन 2 है, और ये स्टेशन 3 यहाँ पे हम कर लेते हैं मार्क. ठीक है, ये स्टेशन 3 है. इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद पहला रीडिंग क्या होता है हमारा? बैक साइड रीडिंग. क्या होता है हमारा रीडिंग? बैक साइड रीडिंग. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर द बैक साइड रीडिंग फॉर द स्टेशन 3. ओके, स्टेशन 3 के लिए बैक साइड रीडिंग कितना हुआ हमारा? 1.565.
565 हुआ। ओके, आर यू गेट इट? वी जस्ट शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट, हमने क्या किया, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया। ओके, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट हुआ, और ये जो रीडिंग है, ये जो स्टेशन है वो एज इट इज है, देयर इज नो चेंज इन द स्टेशन। इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद पहला रीडिंग हम जो स्टेशन पहले से ही हमने लास्ट, मतलब ये स्टेशन का लास्ट पॉइंट, लास्ट रीडिंग जो होता है वो ये रीडिंग का बैक साइड रीडिंग हो जाता है, मतलब फर्स्ट रीडिंग हो जाता है। फिर उसके बाद आने वाले सारे रीडिंग्स हम क्या करेंगे, इसमें आईएस और एफएस में आईएस करेंगे। अगर ये लास्ट रीडिंग है, सपोज दिस इज द लास्ट रीडिंग, दिस इज लास्ट रीडिंग, अगर ये लास्ट रीडिंग है तो ये आपका एफएस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफएस हो जाएगा। तो अभी देखो ये रीडिंग कंप्लीट हो गया, ये रीडिंग कितना है हमारा, रीडिंग नंबर 4। अब ये फिफ्थ रीडिंग है। फिफ्थ रीडिंग क्या है, ये इंटरमीडिएट साइड में आएगा। फिफ्थ रीडिंग कम्स अंडर द इंटरमीडिएट साइड, दैट्स व्हाई वी विल राइट इन अ इंटरमीडिएट साइड कॉलम। ओके, intermediate side column. Again, if the here the second case is there, the instrument is shifted after sixth reading. The sixth reading is here, that is 3.65 3.560. This is your what, sixth reading. So sixth reading must be in a four side case or four side column, so we have to write that in a four side column. इसको हमने क्या किया, अभी फोर साइड के कॉलम में ऐड कर दिया। नेक्स्ट, उसके बाद पहला रीडिंग क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट होने के बाद पहला रीडिंग क्या होता है, बैक साइड रीडिंग होता है, तो हमने उससे क्या लिया, बैक साइड रीडिंग में ऐड कर दिया। और जो लास्ट है, अभी देखो ये लास्ट रीडिंग बाकी रीडिंग रिमेनिंग है, दैट इज 1.260। तो इस ये लास्ट रीडिंग है, तो हम इसको क्या करेंगे, एफएस में ऐड कर देंगे। कहाँ करें, क्या करेंगे, एफएस में ऐड करेंगे। तो ये होगा तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ टेबल, preparation of table for the or collecting the data from the different levels. Have you got this? First of all tell me, आपको समझ में आया ये क्या सर कैसे किया हमने? ठीक है सर, इसके आगे कैसे कर, रीडिंग हमें करना पड़ा। ये जो सारी रीडिंग्स है, ये रीडिंग्स कहाँ से लिए हमने, लेवलिंग स्टाफ से लिया है। कहाँ से लिया है, लेवलिंग स्टाफ से। ठीक है, लेवलिंग स्टाफ ने आपने देखा होगा क्रॉस हेयर जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है लेवलिंग स्टाफ पे, वो रीडिंग हमने यहाँ पे नोट की है। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रोसीजर होती है उसकी, इसका रिड्यूस लेवल हमें निकालना है। रिड्यूस लेवल मतलब क्या होता है, इट इज दी रिड्यूस लेवल, इट इज दी एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिलो और अबव द डेटम। मतलब सपोज ये डेटम सरफेस है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो मे बी नीचे हो सकता है, और मे बी क्या हो सकता है, डेटम के ऊपर हो सकता है। ठीक है, मे बी डेटम के नीचे हो सकता है, मे बी डेटम के ऊपर हो सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका रिड्यूस लेवल क्या होगा, देखो यहाँ पे 100 है, फिर 99.75 है, 99.950 है, 99.365 है, 97.9। तो ये कैसे आया? ठीक है, तो इसको क्या करने का है, सिंपल देखो अभी, simply what you do for doing this, I'm roughing this here. First we have to determine reduce level at height of instrument. ठीक है, जब भी मेथड हम यूज करते हैं हाइट ऑफ कॉलिमेशन और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड जब हम यूज करते हैं, तो रिमेंबर दैट व्हाट वी डू, फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, हमको क्या करना पड़ता है, पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन करनी पड़ती। कैसे करेंगे हम, एच आई इज इक्वल टू एच आई को कैसे निकालेंगे, ये जो रिड्यूस लेवल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का, और जो एज्यूमेबल रिड्यूस लेवल दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रिड्यूस लेवल एज्यूम करने के बोला है उन्होंने फर्स्ट पॉइंट का। एज्यूम द आरएल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये 250.250 इज आवर फर्स्ट पॉइंट। सो ये पॉइंट पे आरएल कितना है, 100 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसका फॉर्मूला होगा आरएल प्लस बी एस, आरएल प्लस बी एस। ओके, आरएल प्लस बी एस, ये होगा तुम्हारा बी एस। बी एस क्या है, 0.250। 0.250 के बाद ये क्या हुआ, ये क्या आ गया, आंसर कितना आ गया हमारा, 100.25। आंसर कितना आ गया, 100.25 आ गया। ये आ गया इसका हाइट। अभी देखो नेक्स्ट, अभी हमें ये पॉइंट का आरएल निकालना है। वी वांट टू डिटरमाइन द आरएल ऑफ सेकंड पॉइंट और सेकंड स्टेशन जो भी होगा। तो इसका आरएल कैसे निकालोगे, सिंपली व्हाट यू डू, you just subtract this
subtract this 0.500 from the height of instrument, you will get this value, you will get this value. ठीक है, आप इसमें से 100.250 माइनस 0.500 माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 99.750. ओके, अभी ये हुआ नेक्स्ट केस. अभी देखो नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, नेक्स्ट केस कैसी होगी, जिस तरह से हमने ये इंटरमीडिएट साइड माइनस करी उसी तरह हमें क्या करना है. In the same way, what we do, we have to subtract. In the same way, we have to subtract this four side also. From what? From where? From this height of instrument. ठीक है, कहाँ से हमें माइनस, कहाँ से हमें करना है, सब्सट्रैक्ट करना है ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से. रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आपको क्या क्या करना है, इंटरमीडिएट साइड सब्सट्रैक्ट करनी है और फोर साइड सब्सट्रैक्ट करनी है. फोर साइड सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फोर साइड सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या आंसर मिलेगा, आपको ये आंसर मिलेगा 99.950. ओके, सो नाउ हियर इज द केस इज चेंज पॉइंट. आपको यहाँ पे क्या मिला, चेंज पॉइंट मिला. ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिला, चेंज पॉइंट मिला. तो ये चेंज पॉइंट है, तो यहाँ पे अभी गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे आया, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे आया. तो सिंपली हमें क्या करना है, इसके लिए व्हाट वी do this is the height, this is what reduced level of a point at this station 3. But after shifting the instrument, what we do, the height of instrument is also changes. After shifting the equipment or the instrument, the height of instrument also changes. तो ये जो है 99.950 में ये RL को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें 1.565 में ऐड कर देंगे. अगर उसको ऐड करने के बाद हमें क्या आंसर मिलेगा, व्हाट वी गेट द आंसर, वी गेट द आंसर दिस वन, दैट इज 101.515. ओके, ये हो गया आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट. अभी जो प्रोसीजर हमने यहाँ फॉलो की थी, ओके, आरएल निकालने के लिए, ये आरएल निकालने के लिए और ये आरएल निकालने के लिए, वही अभी हमें क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी. ओके, सिमिलरली वी हैव टू फॉलो दिस मेथड हियर from this height of instrument, from this height of instrument at the change point second, we have to subtract this intermediate side. ओके, ये इंटरमीडिएट साइड आपको सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी. सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, ये आंसर मिलेगा. ओके, उसी तरह ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आप ये फोर साइड सब्सट्रैक्ट करोगे, दैट इज 3.560. तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर क्या मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा. ठीक है, आपको ये वाला आंसर मिलेगा. सिमिलरली अभी आपको क्या करना है, व्हाट यू डू, ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये जो रिड्यूस लेवल है 97.95, इसको अभी क्या करो तुम, ऐड, इसमें अभी आप क्या हुआ, ऐड करो, दैट इज 0.450 ऐड करो, तो आपको आंसर मिलेगा 98.405. ओके, यू गेट द आंसर ऑफ 98.450. अगर और लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से from this height of instrument you have to subtract this four side, you get the answer of 97.145. okay, so this is what the reduced level. ये सारा क्या है आपका reduced level है, मतलब height indicate करते हैं. okay, it indicates the height. And then you have to go for arithmetic check whether our survey is right or wrong. So we should go by using the arithmetic check. हम क्या करेंगे, arithmetic check प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो arithmetic check करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना पड़ता है. You have to subtract these two quantities, that is BS minus FS is equal to, ये दोनों की वैल्यू जो है तो इक्वल होनी चाहिए. ये फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन दिस फर्स्ट RL and this is the last RL. okay, मतलब ये दोनों का डिफरेंस 5.120 minus 2.265 इसका जो आंसर आएगा वो ये दोनों के डिफरेंस के इक्विवेलेंट होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए. ठीक है, इक्वल होना चाहिए. सो दिस इज द केस ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड. एंड नाउ नेक्स्ट वी गो फॉर द अरिथमेटिक चेक. सी हियर द अरिथमेटिक चेक इज दैट
the difference between the sum of the back side and sum of the foreside is equal to difference between the first and last reduced levels. Okay, difference between the first and last reduced levels. So see here the values 2.855 is equal to 2.855. So our survey is correct, or our survey is right. Okay, this indicate that. Are you getting this? All of you are getting this in what, how we can go for height of collimation method? कॉलिमेशन मेथड से कैसे Yes, sir. करते हैं स्टूडेंट, रिड्यूस लेवल कैसे कंप्यूट करते हैं, आपको समझ में आ गया? चेंज पॉइंट में कैसे चेंज मतलब कैसे रीडिंग्स लेते हैं? किसी को Yes, डाउट sir. मेथड में और ये हाइट ऑफ कॉलिमेशन में? सर ये जो लास्ट वाला पॉइंट है 1.260 सर, हाँ, वो एफएस में आएगा कि आईएस में आएगा सर? एफएस में आएगा। रिमेंबर दैट सर्वे करते समय जो भी आप सपोज आपने दिन भर सर्वे किया, आपको जो जी लास्ट सर। पॉइंट लेना है तो वो लास्ट पॉइंट आपका एफएस में आएगा। ओके, ओके लास्ट ओके पॉइंट सर। आपका एफएस में आएगा, एफएस से बाहर नहीं जाएगा। अगर एफएस मतलब फोर साइड सॉरी बैक साइड और फोर साइड, इसके अंदर आप जितने ही रीडिंग लोगे, ओके, जी सर। फोर साइड और बैक साइड आप इसके अंदर जितने ही रीडिंग्स लोगे वो सारे रीडिंग्स आपके इंटरमीडिएट साइड में आ जाएंगे। यस वो सर। सारे रीडिंग्स आपके इंटरमीडिएट साइड में आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो भी लास्ट होगा वो फोर साइड में ही लिखना। और आपको क्या करना है, रिमेंबर दैट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये सारे आईएस और एफएस माइनस करने इन केस ऑफ हाइट ऑफ कॉलिमेशन मेथड में और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखो। नाउ नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द मेथड ऑफ राइज एंड फॉल मेथड। इसको हम राइज दो मेथड से हम कंप्यूट करेंगे। रिमेंबर दैट दी जो दोनों मेथड में रिड्यूस लेवल तुम्हारा सेम ही होगा। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अरिथमेटिक चेक भी आपका सेम ही हो सकता है। ठीक है, अरिथमेटिक चेक भी आपका सेम ही होता है। तो यहाँ पे आर एल जो जो हाइट ऑफ कॉलिमेशन में हमने आर एल निकाली है वही आपको यहाँ पे आर एल मिलेगी। तो जो रीडिंग तो हम सेम करेंगे उसका, पर इसका मेथड कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो। ठीक है, अभी देखो राइज एंड फॉल में ये सारी चीजें आपको पता है कि बीएस हमने टेबल बना ली। ये जो है आपको बना हमने हमने ऑलरेडी फिक्स कर लिया। ठीक है, इतना पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है पहले ही। अभी हमें सिर्फ मेथड चेंज करनी है। ठीक है, तो अभी हाइट ऑफ कॉलिमेशन में एक कॉलम था, वहां पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी थी, उसके बाद रिड्यूस लेवल निकालनी थी। राइज एंड फॉल में हमें क्या करना पड़ता है कि राइज एंड फॉल में हमें क्या करना पड़ता है कि दो कॉलम्स बनाने पड़ते हैं, राइज और फॉल का, एंड रिड्यूस लेवल का एंड रिमार्क का। रिमार्क हमें देना पड़ता है, मतलब हमें इंडिकेशन, वी गेट द इंडिकेशन दैट द पॉइंट इज बेंचमार्क, देयर इज अ चेंज पॉइंट। ओके, सो ना अभी इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, bs माइनस is, ये डिफरेंस लेना है। व्हाट वी डू, सिंपली bs माइनस is। अगर वैल्यू नेगेटिव आई, remember if the value is negative, so you write in a fall column. If the value is negative, then you write in a fall column. Okay, if the value is positive, so you can write in a rise column. Okay, so simply here 0.250 minus 0.550, answer is obviously minus 2.50. Okay, now next is similarly you take the difference here, 500 minus 300, you get 0.500 minus 0.300, you will get the 0.200, you get the 2.200. Get it? यहाँ तक आया ध्यान में? Have you got this? Yes, sir. Have you got this? Yes, sir. Got it. ओके, सिंपल डिफरेंस लेना है, कैसे करना है। अभी गड़बड़ कहाँ हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है गड़बड़, पर गड़बड़ नहीं करनी है। क्या करेंगे हम, जैसे हमने देखो अभी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है, क्या हुआ है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे चेंज हुआ है, तो हमें क्या करेंगे, सिंपल जैसी प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो की, जैसी प्रोसीजर हमने यहाँ पे फॉलो की, यहाँ पे मतलब ये एरिया में अपर इसमें हमने जैसी प्रोसीजर फॉलो की वैसी प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करनी है। सिमिलर प्रोसीजर वी हैव टू फॉलो हियर। व्हाट वी डू, टेक द डिफरेंस बिटवीन 1.56 minus 2.56, answer is in the minus, so it gives 0.585. okay, it's 0.585. okay, उसके बाद फिर से डिफरेंस लोगे, that is 2.150 minus 3.560, you get the answer minus 1.585.
410। ओके, इसकी यहाँ पे हमने लिख लिया फॉल में। क्यों क्यों लिखा? बिकॉज द वैल्यू इज नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव है इसलिए हमने फॉल में लिखी। और नॉट नेसेसरी टू राइट दी minus sign before the, because it is the decline or it is depression for depressed portion. Similarly what, अभी देखो ये केस में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से डायरेक्टली फोर साइड माइनस कर दो, यहाँ से डायरेक्टली क्या करो, फोर साइड माइनस कर दो, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0.180, 0.810 विल गेट दिस आंसर। ओके, ये हो गया आपको। हैव यू गॉट दिस? समझ में आया अभी तक? यहाँ पे हमने क्या किया इन केस में, राइज एंड फॉल के केस में, ठीक है। हाँ, अभी इसका रिड्यूस लेवल निकालने का है, ठीक है। अभी कैसे करने का है? रिड्यूस लेवल निकालना है। रिड्यूस लेवल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट डेटम दिया है, डेटम का रिड्यूस लेवल दिया है उन्होंने, दैट इज 100 हमको एज्यूम करना है, मतलब यहाँ पे आपका कोई रीडिंग नहीं आएगा, ये इज कंप्लीट ब्लैंक। ओके, यहाँ पे आपका क्या होगा, कंप्लीट ब्लैंक होगा, आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ पे सिर्फ डैश कर दो, ऐसा यहाँ पे सिर्फ डैश कर दो। अभी नेक्स्ट व्हाट वी डू, अभी देखो फॉल में जितने भी रीडिंग होगी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। राइज में जितने भी रीडिंग होगी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, फॉल में जितने भी रीडिंग्स होंगे वो आपको क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। राइज में जितने भी रीडिंग होंगे वो आपको क्या करने पड़ेंगे, फॉल राइज में जितने भी रीडिंग होंगे वो आपको क्या करना पड़ेंगे, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या करो, ये फॉल में तो 100 माइनस 0.250, आंसर आपको मिलेगा 99.750। ओके, 100 माइनस 2.50, आंसर आपको क्या मिलेगा 19। अभी देखो सिंपल, यहाँ से 100 में से नहीं करने का, ठीक है। अभी 100 में से माइनस नहीं करने का, माइनस कहाँ से करने का, यू हैव टू माइनस फ्रॉम दिस, टू माइनस फ्रॉम दी वॉट एवर रिड्यूस लेवल वी गेट, इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और अभी राइज में हो तो माइनस करो, प्लस फॉल, राइज में हो तो प्लस करो, फॉल में हो तो माइनस करो। तो अभी इसमें से हम इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे कितना, 99.750 प्लस 0.200 इज इक्वल टू, वी गेट द आंसर इज 99.950। अभी ये सारी चीजें इसमें से क्या करो, माइनस कर देगा, ठीक है। ये इस 99.950 में से 0.585 माइनस किया तो आपको आंसर मिलेगा 99.365 मिलेगा। फिर 99.365 में से आप 1.410 माइनस करो तो आंसर आपको मिलेगा 97.955। इसमें से ये माइनस करो तो आंसर आपको मिलेगा ये आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये 99.7। तो ठीक है, दोनों का रीडिंग आप क्रॉस चेक कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आंसर आपको दोनों केस में रिड्यूस लेवल का सेम ही मिलेगा, ठीक है। रिड्यूस लेवल का हमें क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका राइज एंड फॉल मेथड। अभी देखो राइज एंड फॉल मेथड में हम अरिथमेटिक चेक कैसे करते हैं, bs माइनस fs इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL इज इक्वल टू, अभी हमें क्या करने का है, you have to take the difference between these two, fall minus rise minus fall, ठीक है, rise minus fall, you will get the answer of that, ठीक है। have you got this method of rise and fall method? rise and fall method समझ में आई आपको? Yes, sir. Okay, चलो, any queries regarding this methods? And now सर अगर सर ये जो सर इंटरमीडिएट जो रीडिंग है, हाँ अगर सर एक जैसे 2 या 3 होता है सर, जो हम लोग का मतलब राइज एंड फॉल होता है उसमें इंटरमीडिएट में ओके, से उसका देखो अभी ये प्रॉब्लम इसमें है क्या, हाँ ठीक है, इसमें है प्रॉब्लम, चलो वो भी बता देते हैं आपको, ओके सर। ओके। देखो यही जो प्रॉब्लम है ये आपके लिए लिखा है हमें कि अभी देखो इंटरमीडिएट आपका जो क्वेश्चन था इंटरमीडिएट वाला, तो वही देखो हमने क्या किया, इसमें भी वही प्रोसीजर फॉलो करनी है। इंटरमीडिएट अगर 2 रीडिंग्स है तो आप क्या करो, इसमें से ऊपर वाली रीडिंग जो है उसमें से नीचे वाली रीडिंग माइनस कर दो। ओके, यू हैव टू गो सिंपल दिस 1.961 माइनस 0.672। ओके, इसमें से ये माइनस करो, आपको ये आंसर मिलेगा राइज वाला, अभी एक राइज वाला आंसर मिलेगा, तो आप इसमें यहाँ पे रख दो, इससे ये माइनस करो तो ये भी राइज वाला आंसर मिलेगा, ठीक है।
अभी उसी तरह आयरन में यू टू सक्सेसिव डिफरेंस लेने का है। सिंपली रिमेंबर दैट यू टेक दी सक्सेसिव डिफरेंस। आपको क्या लेना है? सक्सेसिव डिफरेंस लेना है इसमें से, ठीक है। यू हैव टू डू टू कलेक्ट दी सक्सेसिव डिफरेंस Yes, sir. difference from the readings. Okay, Yes. have you got this? Yes, sir. ओके, सक्सेसिव डिफरेंस लेना है। इसमें से ये माइनस, सिर्फ गड़बड़ कहाँ हो सकती है? गड़बड़ ये पॉइंट में हो सकती है। कहाँ पे? यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे हो सकती है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे यहाँ इसमें से ये माइनस कर देते, ठीक है, फ्रॉम दिस, इसमें से ये माइनस कर देते। पर ये ध्यान में रखना कि जब भी चेंज पॉइंट आए तो हमने जो शुरुआत से किया था वही हमें रिपीट करना है, ठीक है। जो हमने शुरुआत से किया था वही हमें रिपीट करना है। तो ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। तो Okay, ये हो sir. गया आपके सारे रीडिंग्स उसके रिगार्डिंग लेवलिंग में रीडिंग कैसे करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं डेटा। ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मतलब आप इसका क्रॉस चेक कर सकते हो और ट्राई टू सॉल्व इट एट योर ओन, ठीक है। इसको अभी हम यही रीडिंग्स, ये जो रीडिंग्स है ये आपको असाइनमेंट है कि ये सारे रीडिंग्स यूज करके आपको ये प्रॉब्लम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से सॉल्व करना है और इसको क्रॉस चेक करना है कि जो भी रिड्यूस लेवल आपने कैलकुलेट किए हैं वो आपको इसमें मैच हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक चेक भी आप लगा के देखो, आपको एक इंफॉर्मेशन और एक आइडिया आ जाएगी कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इफ इट कम्स इन अ एग्जामिनेशन और इफ इट इज कम्स इन फ्यूचर। if you go to the field and survey like this, so it will be beneficial for you. Okay, now next we move on to the next point, the new topic of today's lecture, that is plane table survey, ठीक है। अभी प्लेन टेबल सर्वे क्या क्यों किया जाता है और प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है, तो उसके बारे में हम एक स्टडी करेंगे कि प्लेन टेबल होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या होती है, किस तरह से सर्वे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ Sir. ऑल द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज व्हाट ग्राफिकल मेथड इन व्हिच द फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग इज डन साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है, एक सिंपल टेबल होता है, ट्राइपॉड स्टैंड पे अटैच होता है, यू फ्रेम से हम उसका सेंटरिंग करते हैं, मैग्नेटिक कंपास से और ट्रप कंपास से हम उसका लेवलिंग करते हैं, उसके बाद प्लम बॉक्स से हम उसका सेंटरिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें भी अभी आज पढ़ लेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो इसमें जो भी प्लॉटिंग होती है, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं मैं कि किस तरह से किया जाता है, ठीक है। ये एक एरिया है, एक एरिया, आपको इसका प्लेन टेबल सर्वे करना है। क्या करना है? प्लेन टेबल सर्वे करना है। तो आपने क्या किया, सिंपली रेंजिंग रॉड लिए, यहाँ पे प्लेस कर दी, इस तरह से रेंजिंग रॉड क्या किए, प्लेस कर दिए, ठीक है। रेंजिंग रॉड्स आपने प्लेस किए, उसके बाद आपने एक प्लेन टेबल लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिया, एक प्लेन टेबल लिया, ये प्लेन टेबल आपने इस तरह से सेट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा लेता हूँ मैं, थोड़ा सा सेट कर दिया, ठीक है। प्लेन टेबल सेट करने के बाद आपने उसकी सारी प्रोसीजर की, सेंटरिंग की, सारी चीजें आपने क्या की, मेजर कर ली, देख ली कि किस तरह से सेंटरिंग करते हो, ठीक है। अभी देखो प्लेन टेबलिंग में एक कंपोनेंट होता है और एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम एडिलेट बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको हम बोलते हैं एलिडेट, उसको क्या बोलते हैं, एलिडेट। एलिडेट आपको अभी दिखा देता हूँ एलिडेट कैसा होता है, क्या होता है। एलिडेट इज सिंपली लाइक दिस, इट इज द इंस्ट्रूमेंट। ये देखो ये एलिडेट है, ठीक है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, एलिडेट है, इसको बोला एलिडेट। इट इज यूजफुल फॉर एस्टैब्लिशिंग अ जी लाइन ऑफ लाइन ऑफ साइट के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो किस तरह से इसका यूज करते हैं, देखो सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे रेंजिंग रॉड्स आपने रो कर दिए। जो मतलब क्या होता है कि अगर आपको फील्ड डिटरमाइन करना हो, एरिया कितना है अपने फील्ड का और एग्रीकल्चरल लैंड का, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, प्लेन टेबल सर्वे यूज कर सकते हैं। और आप क्या करोगे, सिंपली इट इज यूजफुल फॉर टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड। किसके लिए यूज किया जाता है, बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट क्या लगता है आपको, प्लेन टेबल का सेट पूरा लगता है, मेजरिंग टेप लगता है और रेंजिंग रॉड, तीन मेन। और प्लेन टेबल के सेट में आपको लगता है यू फ्रेम, एलिडेट, प्लम्बिंग फॉर्क, ओके, प्लम बॉब लगता है और
ट्रप कंपास और पेंसिल पट्टी, ये सारी चीजें आपको लगती। तो हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे हमने एक पेपर लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक पेपर लिया, ठीक है, अभी पेपर स्काई कलर का पेपर लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा पेपर लिया, वी हैव टू टेक दी पेपर एंड पेपर ऑफ दैट, ठीक है, पेपर हमने लिया, इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया इस तरह से, सेंटर किया, पेपर का सेंटर किया, सब पेपर को क्लिप से सेट कर दिया, पेपर से सेट कर दिया, ओके। So with the help of Alided, we have to range this point. Alided के हिसाब से, Alided के साथ, Alided के, अरे it is okay, 2 मिनट। Alided, with the help of Alided, we have to complete that the ray. We see the ray. हमने क्या किया, एक रे देखा, एक उसको क्या किया, इस तरह से प्लॉट कर दिया, ठीक है, ये आपको प्लॉट कर दिया। इसमें प्लॉटिंग क्या होती है, प्लॉटिंग ऑफ फील्ड वर्क डन साइमल्टेनियसली, ओके। उसके बाद हमने किया, इसको यहाँ से रेंज किया, आपने सिमिलरली यहाँ से आपने रेंज किया इसको, ये रेंजिंग रॉड को डिस्टेंस मेजर करना है आपको। सिंपली रेंज करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट है वहां पे आपको डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, ये सेंटर पॉइंट और ये यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस मेजर करने के बाद जो भी स्केल होगा, फॉर एग्जांपल इफ योर स्केल इज 10 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, जो भी सुटेबल स्केल आप यूज कर सकते हो, वो स्केल से हम यहाँ पे क्या करोगे, इसका प्लॉट करोगे, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट है, उसका इसका प्लॉटिंग करोगे। प्लॉटिंग करने के बाद आपको एक फील्ड मिल जाएगा, इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, इस तरह से आप क्या करोगे, ये सारे पॉइंट्स क्या करोगे, ज्वाइन करेंगे, जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंस होगा। और इसका एरिया, ट्रायंगल, आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा, उसका एरिया निकाल लो, तो आपको पूरा टोटल एरिया निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। इसमें क्या किया जाता है, बेसिक डिफरेंस इसका क्या होता है, वी हैव टू डू बोथ प्लॉटिंग एंड ड्राइंग, ओके। प्लॉटिंग और फील्ड वर्क दोनों ही साइमल्टेनियसली यूज की जाती है, तो इसीलिए ये मेथड इज इम्पोर्टेंट एंड पर्टिकुलरली अडेप्टेड इन स्मॉल मैपिंग। जब जहाँ पे हम स्मॉल मैपिंग करते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी हैव टू यूज दिस मेथड, दैट इज प्लेन टेबल सर्वे। सो नाउ व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ओके। मेरिट्स इसमें क्या है और डिमेरिट्स क्या है। तो मोस्ट सुटेबल फॉर प्रिपेयरिंग स्मॉल स्केल मैप और सर्वेइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया। अगर छोटा एरिया आपको स्टडी करना है, छोटा एरिया के बारे में, तो आप छोटा एरिया इससे सर्वे कर सकते हो, इट इज यूजफुल, इट इज रैपिड मेथड, ओके। ये क्या है, रैपिड मेथड है, इसको ज्यादा मतलब जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लगता सर्वे करने के लिए। आप जाओ फील्ड में जाओ, रेंजिंग रॉड लगा दो और प्लेन टेबल सर्वे शुरू कर दो। फील्ड बुक इज नॉट नेसेसरी, जैसे कि लेवलिंग में हमें फील्ड बुक लगती है, ठीक है, राइज की रीडिंग, बैक साइड की रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग और फॉल साइड की रीडिंग हमें लेने पड़ते हैं, तो इसमें फील्ड बुक की नेसेसरी नहीं है। आप सिर्फ पट्टी पेंसिल लेके जाओ, फील्ड बुक ड्राइंग पेपर आपके साथ होना चाहिए और आप डायरेक्टली गो टू द फील्ड एंड स्टार्ट योर वर्क। नो ग्रेट स्किल इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्टरी मैप, ठीक है, इसके लिए ज्यादा स्किल की भी जरूरत नहीं होती है, ओके। इट इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर अ मैग्नेटिक एरिया वेयर प्रिज्मेटिक कंपास इज नॉट रिलायबल, ओके। मतलब मैग्नेटिक एरिया, यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास सुटेबल नहीं होते, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। कंटूर एंड इरेगुलर ऑब्जेक्ट में बी रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली, ओके। कंटूर्स होते हैं और इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसको हम एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इट इज लेस कॉस्टली, इसकी कॉस्ट बहुत ही कम होती है। अगर आप मार्केट में जाओ, प्लेन टेबल आपको लेना हो, तो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट ऑफ प्लेन टेबल इज रेंजिंग फ्रॉम 7 to 10,000, ठीक है। 7 to 10,000 में आपको प्लेन टेबल का पूरा सेट मिल जाएगा। उसमें ट्राइपॉड स्टैंड होगा, ड्राइंग बोर्ड होगा, एलिडेड होगा, क्लिप्स होगी, मैग्नेटिक ट्रप कंपास होगा, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज demerit. Demerits क्या होते हैं? It is plane table is a essential tropical instrument. मतलब जैसे कि
रेनी सीजन हो तो रेनी सीजन में आप इसको वर्क नहीं कर सकते हो। ओके, इट इज नॉट सुटेबल टू वर्क इन अ वेट क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट में आप इसके साथ वर्क नहीं कर सकते हो। देन there are several accessories that to be carried out and therefore they may likely to be lost, क्योंकि प्लेन टेबल में क्या होता है, बहुत सा सेट होता है, सेट्स बहुत सी accessories होती है, तो there may be chance of loss of that accessories and it is not suitable for accurate work, इसमें accurate work नहीं किया जा सकता है। So these are the some demerits, but small scale के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये है प्लेन टेबल का सेट। देखो आपको प्लेन टेबल का सेट में आपको मिलेगा, ये प्लेन टेबल है, जैसे कि ड्राइंग बोर्ड आपने देखा होगा। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड होता है, इट इज वेल सीजन ड्राइंग बोर्ड विथ अपर सरफेस इज एक्जैक्टली प्लान एंड इट इज नॉर्मली रेक्टेंगुलर इन शेप विद अ साइज ऑफ 75 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 टू 60 सेंटीमीटर के रेंज में होता है। उसके बाद ये प्लम बॉब होता है। प्लम बॉब का आपको पता है ना यूज क्या होता है, प्लम बॉब सेंटरिंग करने के लिए। प्लम बॉब किस तरह से सेंटरिंग करता है, देखो। ठीक है, ये प्लेन टेबल है, ये टेबल है। ठीक है, आपने इसको प्लेस किया ट्राइपॉड स्टैंड पे। यू हैव टू प्लेस दिस टेबल इन अ ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड में आपने टेबल ऐसे, ये टेबल है, ये टेबल है, यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड है, ऐसा आपने लगा दिया। ट्राइपॉड स्टैंड यू हैव टू यूज देयर, ट्राइपॉड स्टैंड आपने ऐसा लगा दिया है। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड कंसीडर करो, तो आपको क्या करना पड़ता है, सेंटरिंग करनी पड़ती है। यू नीड टू गो फॉर सेंटरिंग। सेंटरिंग कैसे करोगे अभी, सिंपली व्हाट यू डू, टेक दिस यू फ्रेम। ठीक है, ये देखो, ये जो यू फ्रेम है, ये आपको ठीक है क्लियरली दिखाई नहीं दे रही होगी, पर यू फ्रेम है। यू फ्रेम को क्या करो आप, ये जो पॉइंट है इसको ऐसा यू फ्रेम यहाँ पे कर दो, इसको हम लोग कर दो ऐसे, यू होता है इसका, यू होता है इसलिए इसको हम यू फ्रेम बोलते हैं। तो ये पॉइंट में यहाँ पे आप प्लम बॉब ऐसे छोड़ दो, प्लम बॉब आप क्या करो, इसको इस तरह से छोड़ दो, आपको क्या मिलेगा, सेंटर मिल जाएगा, ग्राउंड का सेंटर मिल जाएगा। ठीक, मतलब ये पॉइंट जो है आपका क्या है, सेंटर पॉइंट है, और इसको हम इसका बेंचमार्क भी बोल सकते हैं। तो इससे आप क्या करोगे, जो भी पॉइंट होगा वहां से आप क्या करोगे, डिस्टेंस मेजर करोगे। ठीक है, उसके बाद होता है ये प्लम बॉब सेंटरिंग का काम करता है। मैग्नेटिक ट्रफ कंपास क्या करता है, जैसे कि हमें सर्वे का ओरिएंटेशन करना हो तो नॉर्थ कहाँ पर है, ओके, नॉर्थ हमें डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रफ कंपास यूज करते हैं। ठीक है, जैसे भी देखो अभी आपने जो भी मैप देखा होगा, तो मैप के ऊपर आपको ऐसे नॉर्थ करके दिखाया जाता है। ठीक है, इट इज द नॉर्थ ऑफ द फील्ड। ओके, फील्ड का नॉर्थ इस तरफ है, फील्ड का नॉर्थ उस तरफ है। ये इंडिकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रफ कंपास की जरूरत पड़ती है, और मैग्नेटिक ट्रफ कंपास की जरूरत पड़ती है। एडिलेट क्या होता है, सॉरी एडिलेट क्या होता है, एडिलेट क्या होता है, इट इज नथिंग बट द सेम स्केल। ठीक है, ये क्या है, एक स्केल होती है, क्या है, एक स्केल है, इस तरह से एक छोटी सी स्केल होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभी दो एजेस देते हैं, एक वर्किंग एज एंड एक साइटिंग एज। ओके, एक जो होता है वो वर्किंग एज होता है, और दूसरा जो होता है वो साइटिंग एज। अभी वर्किंग एज में क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस हेयर होता है छोटा सा, ऐसा सेम होता है। ठीक है, इट इज दी क्रॉस हेयर, यहाँ पे क्रॉस हेयर होता है, बारीक थ्रेड होती है, और यहाँ पे आप क्या करते हो, आई पीस, एक साइड से आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे तुम्हारा एक आई पीस, मतलब आप आंखों से देख सकते हो, रेंज कर सकते हो ये रेंजिंग रॉड को, और यहाँ पे स्केल होता है। ठीक है, 0 2 का स्केल होता है, 0 2 4 6 4 6 8 10 अप टू 12 30 अप टू 30 32 40 50 तक इसका स्केल होता है, मतलब अराउंड 2 फीट, अराउंड 1 to 2 फीट। ओके, 2 फीट इसका स्केल होता है। तो आप स्केल के हिसाब से आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो। ठीक है, इसको सेंटर में रखो, और आप वहां से फॉर एग्जांपल डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट का 10 मीटर है, तो आप क्या करोगे, 10 मीटर, ये जो एज है 10 मीटर पर रखोगे, और वहां से ऐसा मार्क करोगे। ठीक है, तो आपको एक डिस्टेंस मिल जाएगा 10 मीटर फील्ड में। तो ये हुआ आपका एलिडेट। तो इसमें इसको बोलते हैं, ये जो वर्किंग एज है एलिडेट का, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूडिशियल एज। ओके, द फ्यूडिशियल वर्किंग एज ऑफ द एलिडेट इज आल्सो कॉल्ड एज फ्यूडिशियल एज।
तो ये क्वेश्चन बार कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्लेन टेबल के बारे में। तो एलिडेट का ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइपॉड स्टैंड आपने देख लिया, जैसे हमने ट्राइपॉड स्टैंड लेवलिंग का देखा, डंपी लेवल का, उसी तरह इसका भी ट्राइपॉड स्टैंड होता है, पर यहाँ पे अरेंजमेंट अलग होती है। यहाँ पे स्क्रू अरेंजमेंट होती है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्टेड अरेंजमेंट दी जाती है। तो ये हुआ आपका प्लेन टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन। सो नेक्स्ट इज रेडिएशन। अभी इसको इस सर्वे को कैसे करते, किस तरह से किया जाता है सर्वे को, ठीक है। देयर आर जनरली 4 मेथड, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, देन ट्रैवर्स मेथड एंड लास्ट वन इज रिसेक्शन मेथड। तो हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे कि 3 मेथड्स में किस तरह से प्लेन टेबल सर्वे किया जाता है। तो रेडिएशन मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड the position of the point is located on a plane by drawing a ray from the plane table station to the point and plot the scale along the ray. The distance is measured from the station to the point. The method is suitable for survey of small area which can be commanded from the single section. ठीक है, मतलब आप एक सेक्शन से ये जो एरिया है इसका कवर सकते हो। किस तरह से कर सकते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये प्लेन टेबल लिया है, ठीक है। दिस इज दी प्लेन टेबल एसेसरीज, यहाँ पे ये प्लेन टेबल है। इसके बाद उन्होंने मार्किंग किया, सेंटरिंग किया। तो रेडिएशन मेथड में क्या करते हैं, सिंपली आप फील्ड में जाओ, सिंपली आप फील्ड में जाओ, रेंजिंग रॉड्स जो फील्ड की बाउंड्रीज है वहां पे आप रेंजिंग रॉड्स क्या करो, ड्रॉ करो। व्हाट यू डू, गो देयर एंड सिंपली ड्रॉ ए रेंजिंग, पुट और रो दी रेंजिंग रॉड्स। रेंजिंग रॉड्स क्या करो, इस तरह से रो कर दो वो पॉइंट्स पे, जो ही पॉइंट्स होंगे उसमें। रो करने के बाद आप क्या करो, एलिडेट लो, ये सेंटरिंग मार्क करके इसका रेडिएशन सिंपल मेथड से रेडिएशन कर लो, मतलब एलिडेट से रेडिएट करके आप इसको मार्क कर दो, ठीक है। ये और आपको इस तरह से मैप मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, ये हो गया तुम्हारा रेडिएशन मेथड। सिंपल मेथड है और जनरली अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड होता है आपका ट्रैवर्सिंग, नेक्स्ट मेथड होता है ट्रैवर्सिंग मेथड। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन मेथड। अभी इंटरसेक्शन मेथड क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉइंट्स जो है दिखाई नहीं देते, ओके, और द पॉइंट्स विच आर नॉट, दिस इज मोस्ट डिजायरेबल इन अ माउंटेनियस और ब्रोकन रफ सरफेस वेयर द डिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड फिजिकली, ठीक है। जहाँ पे डिस्टेंस फिजिकली मेजर नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड यूज करते हैं। इन दिस मेथड एम्प्लॉइज लोकेटिंग अ पॉइंट बाय प्लॉटिंग 2 रेज फ्रॉम द 2 नोन स्टेशंस, ओके। मतलब क्या होता है, 2 नोन स्टेशन है हमें, तो हम वहां से उसका रीडिंग लेते हैं और उसका रेंजिंग करके उसको मार्क करते हैं। लेट अस कंसीडर द 2 पॉइंट्स, ओके, टू नोन स्टेशन, दैट इज दिस इज स्टेशन P and station Q. Consider करो 2 स्टेशन। फर्स्टली द टेबल इज पुट ऑन द 1 सेट, मतलब हमने पॉइंट टेबल को क्या किया, सेट किया कहाँ पे, P स्टेशन पे, और P स्टेशन से सेट किया देन Q। पहले हमने P को सेट किया, 2 मिनट, वेट मिनट। Firstly, we put the table at a point P. Point P पे स्टेबल रखो और वहां से ये दोनों पॉइंट क्या करो, रेंज कर लो एलिडेट के हिसाब से। देन Q पे आओ, स्टेशन Q पे आओ। स्टेशन Q पे आने के बाद आपको A and B आर साइटेड एंड लाइंस आर प्लॉटेड। आपको क्या करना है, A और B क्या करना है, दोनों साइड को कंसिडर साइटिन करना है और प्लॉट कर लेना है, और ये आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब आप क्या करोगे, ये अगर आपको ये पूरे फील्ड की बाउंड्री का मैप बनाना है, तो आप ये पॉइंट पे आप क्या करो, प्लेन टेबल सेट करके रीडिंग्स कलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली टेबल वेयर सेट इज सेट टू द नेक्स्ट स्टेशन Q and the station P and A and B are sighted and lines are plotted. Thus, intersection point of rays A and B is required for the location of the point. Okay, मतलब ये आप यहाँ पे सेट करके रीडिंग्स ले सकते हो, इंफॉर्मेशन, ओके, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट इज ट्रैवर्सिंग मेथड। अभी ट्रैवर्सिंग मेथड में क्या किया जाता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। इसमें क्या किया जाता है कि ये फील्ड, आप जो भी फील्ड होता है, ठीक है,
आपको क्या करना पड़ता है, फील्ड पे जाना पड़ता है। ये स्टेशन आपने ऑलरेडी पहले मार्क कर दिए, यू ऑलरेडी मार्क दैट स्टेशन, ऑल स्टेशन, ओके, यू ऑलरेडी मार्क दैट ऑल स्टेशन। आपने क्या किया, सारे स्टेशन क्या किए, ऑलरेडी मार्क कर दिए, ए बी सी डी। तो पहले क्या करो आप, प्लेन टेबल से असेसरीज को क्या करो, असेसरीज प्लेन टेबल को क्या करो, स्टेशन ए के पॉइंट पे सेट करो, और स्टेशन ए के पॉइंट से आप क्या करो, रेंज करो। यू हैव टू रेंज दिस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो आपको ये लाइन मिल जाएगी, ठीक है, दिस वन, दिस लाइन यू विल गेट, यू गेट दिस लाइन, यू गेट दिस लाइन, ठीक है, लाइन ये मिल जाएगी आपको छोटी सी। उसके बाद आप मूव करो इस स्टेशन की ओर, स्टेशन बी पे जाओ। स्टेशन बी में आप ये इसका लीनियर डिस्टेंस मेजर करना, रिमेंबर दैट, आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि लीनियर डिस्टेंस भी आपको ये पॉइंट ए बी और बी ए का आपको लीनियर डिस्टेंस मेजर करके उसका एवरेज डिस्टेंस यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है। तो बी और सी से आप टेबल उठाए, टेबल शिफ्ट करो पॉइंट बी को, बी की ओर टेबल यहाँ पे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ए भी रेंज करना पड़ेगा और पॉइंट सी भी रेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर टेबल लेके टेबल शिफ्ट टू, देन शिफ्ट टेबल टू द पॉइंट सी, एंड फ्रॉम पॉइंट सी यू हैव टू रेंज पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आल्सो, एंड अगेन शिफ्ट दिस टेबल टू द पॉइंट डी, and it is range point E and point C also. And sometimes from the any one station you can go for checking, okay, you can go for any one check line, ठीक है, check line आने, check line निकाल देने की, so it gives the accuracy of that survey, it maintain the accuracy of the survey, ठीक है। Now next point is the what are the precautions are necessaries or precautions to be needed while we are dealing, while we are conducting this plane table survey. First is the plane table has to be properly oriented at each station, else the lines drawn from the new station will not be in accordance with the previous, ठीक है। तो ये प्रॉपरली ओरिएंटेशन जब आप करते हो तो उसके समय आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी लाइंस आपने ड्रॉ की है न्यू स्टेशन के लिए, वो भी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस लाइन ही होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली उसी तरह होनी चाहिए। द रेस मस्ट बी ड्रॉन केयरफुली यूटिलाइजिंग द स्ट्रेट रूलर ओनली, ओके, स्ट्रेट रूलर के हिसाब से ही आप क्या करो, इसका रेज ड्रॉ करो। रेज मतलब क्या है कि जब हम रेंज करते हैं, एडिलेट में से रेंज करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं उसको रेंज करना और रे ड्रॉ करना। पेपर क्लिप मस्ट बी यूज्ड टू होल्ड ड्राइंग शीट, ओके, दिस एस्टिमेट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ द ड्राइंग शीट। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी कभी एक्सपांशन हो जाता है ड्राइंग शीट का, तो ये चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, केयरफुली ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो पेपर होगा आप वो प्रॉपरली सेटअप करना पड़ेगा, कंप्लीटली फिक्स करना पड़ेगा, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द पेपर। चेक लाइन मस्ट बी प्लॉटेड टू मेंटेन एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, चेक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। और सेंटरिंग ऑफ द एडिलेट मस्ट बी डन विद द केयर, और जो भी जब आप एडिलेट का सेंटरिंग करोगे तो वो केयरफुली होना चाहिए। सो दिस इज द केस, दिस इज व्हाट द केस ऑफ एडिलेट, और दिस इज द मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। सो हैव यू होप सो यू हैव यू गॉट दिस method of plane table surveying, and that is useful and generally used in the survey. Get it? Hope you are all you getting this. समझ में आया आप सबको? Yes, sir. Any queries regarding this topic?